Closing of the schools happen because of different reasons, but one of the most important reasons is lack of support. Whether we like it or not, there is less support, and people who are running the schools will not be able to understand what to do in that particular situation. Especially when you are looking at a franchisee model, any franchise school, if it is losing out, it's only because of lack of support. We have seen that the varied kind of schools that are here require different kinds of support, because one size fits all is not going to work, especially in the educational sector. Schools in the city probably require a different kind of support, whereas schools in 2-tier and 3-tier cities, they require a different kind of support. Especially when you're looking at places, in case of cities where you have good principal leaders who will come in and set up the schools, wherein they know what to do and how to grow the school. Many of the times the approach itself goes down. When you're looking at the academics specifically, the kind of teachers that we have in that area, the kind of students who come in, their needs, no master's franchisee is able to cater for that kind of need. Especially in case of 2 and 3-tier cities, where teachers require a different competence altogether. Being sensitive to the needs of these schools is what we require. So when you look at the complete scenario, there is a lot of gap which needs to be filled, and that's one of the reasons Indigo Global has thought of this particular model which might work. Regarding academics, today's expectations of NEP is huge. They say cater to local content, cater to local need. Who is going to do this? This is one of the opportunities that Indigo Global has identified, and to take it further, I would request Dr. Manjeet to take over and speak about the same. स्कूल तमिलनाडु, केरला में, राजस्थान में, बालोतरा, बाड़मेर, पंजाब, almost 25 states में हमारे पास स्कूल हैं. The problem is India's most unorganized sector is education. We have to accept this part. यहाँ पर स्कूल का परमिशन तो रेगुलराइज है कि आपको परमिशन कैसे मिलना है, पर स्कूल को चलाना कैसे है, कोई SOPs नहीं है. आप सबने देखा होगा कि schools are mushrooming like anything, but when it comes for the quality education, we are nowhere. So Indigo Global School जो फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो ब्रांड नेम जो बिक रहा है, आप आसपास देखें काफी ब्रांड नेम के स्कूल्स है, सिर्फ ब्रांड नेम बिक रहा है. एक सेम स्कूल ABC स्कूल जिसका ब्रांच दिल्ली में है और इसका ब्रांच बाड़मेर में है, दोनों में स्कूलिंग में रात दिन का फर्क है, ह्यूज डिफरेंस, यू कांट कंपेयर इवन. इट मींस ओनली ब्रांड इज सोल्ड, नॉट द सिस्टम. आई वाज टॉकिंग टू माय मेंटर मिस्टर पंत यस्टरडे, एंड ही वाज सेइंग कि बच्चों को ABC सिखाया जा रहा है, बट ए सबसे पहले क्यों आ रहा है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं की जा रही है. कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हम लोग नहीं कैटर कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम हमें मौका नहीं दे पा रहे. आप दिल्ली तक है, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, स्कूल मिलियंस ऑफ फीस चार्ज करती है. आप थोड़ा दूर जाए, यू विल फाइंड इट डिस्टेंस. इंडिगो ग्लोबल स्कूल थॉट वन थिंग कि वन सिंगल टीम कैन नॉट हैंडल ऑल द पार्ट. तो टू मेक अ परफेक्ट टीम हम लोगों ने डायरेक्ट किया इंडियन क्रिकेट टीम की जो एकेडमी है मिस्टर रोहित शर्मा की, स्पोर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए वन ऑफ इंडिया नॉन सिंगर सुरेश वाडकर सर एकेडमी, डांसिंग स्किल्स के लिए श्यामक रावत एकेडमी, एजुकेशन रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके. एक मेजर कंसर्न रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे वैल्यूज बोल रहे हैं, संस्कार बोल रहे हैं. आई एम ऑल्सो पेरेंट्स, बट हमारे स्कूलिंग सिस्टम में वैल्यूज और संस्कार की जो बुक है वैल्यू एजुकेशन, वो एक रामायण पढ़ा के ये पूछते हैं राम वनवास किधर गया था, ये वैल्यू नहीं है. तो उनके लिए हमने जो वर्ल्ड बेस्ट वैल्यू सिस्टम है जापान में हमारे साथ में, वी हैव इनवाइटेड हर, शी इज पार्ट ऑफ इंडिगो ग्लोबल स्कूल. स्किल्स के लिए वी हैव टाइड विद सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनीज. स्कूल ब्रांडिंग मार्केटिंग यूके बेस्ड कंपनी इज ब्लू एप्पल, वी आर टाइंग अप विद दिस पार्ट. सेकंड, हमारा जो प्रिंसिपल पूल है इज नॉट सेंट्रलाइज्ड ऑफ दिल्ली. आप ये समझिए कि
केरला के जो स्कूल के टीचर की समस्या है वो दिल्ली से अलग होगी। So we have versified pool of educators with us and principals with us who all are working together. Our main focus is to provide quality education, to provide a franchise with a system, not only a name. एक स्कूल ओनर लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट स्कूल में इन्वेस्ट करता है, लाइफ टाइम का, और जब नेशन जीरो की बात आती है तो कहीं भी नाम आता है उनका। So why not we recognize his or her efforts also? They also required. So having all the issues, we come together and we form this Indigo Global School. This will not only sell franchising, it will be there in the school, taking care of school legal support, balancing, budgeting, auditing, marketing, skills, values, manners, everything. So you might have come across कि हमारे पास सब experts हैं, कोई CA है, कोई budgeting के experts है, कोई values के experts है. This is the only reason. Let's come together to reform the Indian education system. Now, house is open for the question and answer. Thank you. Services, Shamak Towers dancing services, Blue Opus English services, कंपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जिसका वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपए चाहिए। तो देखा जाए तो वी आर हैविंग जीरो कॉस्ट फ्रेंचाइजी। I am from academic background. I have suffered. I am from a small village of Bikaner. It's called Kalu. So to give us education, my grandparents shifted to Mount Abu. So we know the situation on ground level. So we cannot put कि 50 लाख की लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, 2 करोड़ लेंगे. Based on the location of the school, strength of the school, we are working on it. In terms of academics, the modern day theory say impact is only growing marks. This is, but I am deadly against this point. Has been left alone from all the government systems. That's why we have kept 5 lakh rupees, maximum 20 lakh rupees. It's 1/4 of existing players even, and with all the services. इंजीनियरिंग एजुकेशन इंडिया में बहुत पहले से था। आपको पता होगा गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत पहले से था। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, बेनको, और हमारे पुराने बुजुर्ग सब बेनको इनको कहीं पढ़े होते थे। तो IITs ने क्या ऐसा कर दिया सन 60 में, एकदम न्यू किड ऑन द ब्लॉक जिसने बदल दिया सब कुछ। उस तरह की चीज ये करने जा रहे हैं जो इनको भी, अभी मैंने कहा, पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ये अभी भी औरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये किसी से कंपेयर करने लायक ही नहीं है, एकदम अद्भुत है। IIT जब बने, और मैं फर्स्ट टाइम जानता हूँ, 10 साल का एक कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम बना, जिसमें कि 10 टॉप इंस्टीट्यूशंस यूएस के, कैलटेक, इनफैक्ट MIT सबसे इम्पोर्टेंट था, कैलटेक था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले था, प्रिंसटन था, केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, केस वेस्टर्न हो गया, कार्नेगी था, मिशिगन थी, पर्ड्यू थी। इन लोगों ने 10 साल के लिए कमिट किया कि हम एक IIT बनाएंगे। और क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आप में से जो लोगों को याद हो, सन 57 में रशिया ने स्पुतनिक छोड़ दिया। तब तक अमेरिका अपने को सबसे बड़ा तीरंदाज काम समझता था। जब अमेरिका ने देखा कि तो रशिया हमसे आगे चल गया, तब उनको लगा हमें अपना एजुकेशन सुधारना है। और एजुकेशन सुधारने के लिए हम हैं, लेकिन टैलेंट इंडिया में है, और इंडिया में टैलेंट कहीं भी हो सकता है। तो ये लोग बात कर रहे हैं टियर 2, टियर 3 में जाने की, तो उनका हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सबसे होशियार बच्चों को हम लेंगे और उन्हें नए तरीके से बताएंगे। वही चीज इन्होंने करी अनजाने में। जापान से वैल्यूज की बात करिए। जापान का वैल्यू सिस्टम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक तरफ से तो क्वालिटी कहेगा, लेकिन क्वालिटी को ट्रांसलेट करेगा 6 सिग्मा में, केम्बा काइजन में, जो जैनियों के अनुव्रत होता है वगैरह। तो क्वालिटी हवा में नहीं है कि राम गया, ये गया, वो गया, ये नहीं। उससे उन्होंने कार जो बनाई वो अमेरिकन कार से बेटर हो गई। सन 70 में जब हम US कनाडा में थे तो जापानी कार को कोई नहीं मानता था, सब अमेरिकन मोटर्स की इम्पाला चढ़ते थे, हम लोग ये चढ़ते थे। वो 10 साल बाद सब जापानी कार आ गई, और 6 सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया, ये कर दिया। ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं। अगर हम जैसे इन्होंने कहा सिर्फ रट्टू तोता बनाएंगे, तो वो रट्टू तोता को जहाँ पे रिपीट करें वो कर देगा अच्छा, लेकिन वो उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो और जगह के एजुकेशन सिस्टम्स देखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको एक नया एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो ग्लोबल ओरिएंटेशन का हो, और उसकी इनपुट अगर नहीं होगी तो वो नहीं होगा। सिर्फ कहने से यहाँ विश्व में सबसे श्रेष्ठ है नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द एडवांटेज इज
that once you have, just like in IIT Kanpur, you created this thing, it spread and it had a huge impact. In fact, the whole IIT system, the IIT Delhi, UK से collaboration हुआ, IIT Chennai, German collaboration था, IIT Bombay, Russian collaboration था, but that spirit went down. If you are all part of one big group, rather than अपना अलग-अलग करके और एक आध कोई चीज मिल गई इसको लेके, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अदर एजुकेशन में क्या होता है, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, हम एक बड़ा आदमी का नाम ले लेते हैं, कोठारी जी ने ये कहा, उसने ये कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा होना क्या चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन से तो उनका ईगो हो जाता है, मैंने ऐसे कहा तो ऐसे ही होना चाहिए, ये कह रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो श्रेष्ठ है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएगा वो करेगा। मैं लास्ट में सिर्फ ये कह दूंगा, कहने को तो मैं टीचर ही हूँ, घंटों तक बोल सकता हूँ। मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, आप किस एरिया में काम करते हैं, तो मैंने कहा देखिए मैं FMGC प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ। अब आप लोग सब जानते हैं वो FMGC तो FMCG होता है, वो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा नहीं, मेरे FMGC में है फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तो मैं वो शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो उन तक जाएगी, तो सिर्फ इसकी नहीं कि ये पास हो गया क्या हमारे 10 लोग IIT आ गए, ये नहीं, हम बात वो कर रहे हैं जो कि दूर तक जाएगी और काफी समय तक असर करेगी। तो इसलिए मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई।